All right, officially done with chapter number 2. Uh, oh, nice, nice, nice. I didn't know that. Lekin, chalo, we are officially going to be starting off with paper number 2, not chapter number 2, my bad. Paper number 2. अब पेपर वन तो हमने काफी कर लिया, discussed all the theoretical aspects, and now we are finally going to be starting off with the part which I personally love. That is paper 2, because paper 2 के अंदर हम जो चीजें पढ़ेंगे वो चार main components में divide होगा. The first one is basically, if I kind of make a यार करीब कर लेता हूँ अगर आवाज थोड़ी कट रही है, लेकिन we are going to be studying four main things. The first one is basically related to programming. So why not create a table like this or perhaps a map. एक जो हम चीज पढ़ेंगे that will be programming. अब I want to clarify that we won't be studying any sort of programming language. सही है? नहीं यार, we don't. मैंने मैसेज किया था Saturday and maybe we might have a class tomorrow. Again, सही है? Depends. But चलो, अब पेपर नंबर 2 के अंदर एक जो हमने चीज पढ़नी that will be programming. उसके बगैर we are going to be studying something known as logic gates. And finally, we will be studying logic gates. And then finally, we will be studying something known as databases. So हमारे ये तीन key domains है जिनको हम इंशाल्लाह in this upcoming month discuss करेंगे. The chapters division are as in we have programming covered up in chapter number 7 and chapter number 8. We have the logic gates covered in chapter number 10, and then we have databases covered in chapter number 9. We will be going in the sequence, starting off with chapter number 7 today and going to then databases, and finally ending the course inshallah in October with logic gates, which will be chapter number 10. अच्छा, कल मैच है, चलो वो देख लेंगे यार, कोई सीन कर लेंगे मैच के लिए. चलो, इसकी टाइमिंग क्या है? मैच रात को होगा. अगर रात को होगा तो चलो फिर हम आप लोग को छुट्टी दे देंगे. लेकिन चलो, टुडे वी आर बेसिकली गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर नंबर 7. अब चैप्टर नंबर 7 जो है ना उसका, अच्छा 7:30, ओके 7:30 to 10, फिर तो मुश्किल ही है. चलो फिर छोड़ो. अब चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है ना, दैट इज बेसिकली एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इन सिंपल अल्फाज, अगर इस टॉपिक के नाम को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस सारा टॉपिक में कोई मुश्किल है नहीं. P2 को वैसे ही लोग कहते हैं कि इट्स डिफिकल्ट. लेट्स से मैं आप लोग को बोलता हूँ अब आपके जहन में होगा कि व्हाट डज द वर्ड एल्गोरिथम मीन. अब एल्गोरिथम इज बेसिकली समथिंग कि अगर मैं बोलूँ किसी चीज को करने के स्टेप्स, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं अभी आप लोग को बोलूँ कि भाई टेल मी Manal, tell me the steps to make a burger. तो मनाल क्या स्टेप्स करेंगी? मनाल विल बी लाइक सबसे पहले स्टेप उसका होगा मे बी गेट बंस. सही है. सेकंड स्टेप विल बी मे बी टोस्ट द बंस. थर्ड स्टेप विल बी फ्राई द चिकन. सही है. फोर्थ स्टेप विल बी मे बी add sauces onto the bun. Finally, fifth step will be to assemble the burger. So हम कह सकते हैं assemble the burger. अब ये हमने क्या किया? We just kind of wrote an algorithm. Why? Because we क्या बात है रेहान, क्या बात है. या श्योर अहमद, श्योर. सो हमने अभी तक कोई खास चीजें पढ़ी नहीं. I'm just talking about कि पेपर 2 का ब्रेकडाउन इस तरह होगा. And we are starting off with algorithm design and problem solving, where we are discussing what the word algorithm means. अब algorithm जब लोग कंप्यूटर साइंस में सुनते हैं ना, they are like, oh यार ये तो बहुत डरावनी चीज है, algorithms यार कोई coding होगी, stuff like that, but it's not that way. The thing is, algorithm basically refers to a specific set of steps. Like for instance, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर मैंने बर्गर बनाना हो, उसके जो मेरे पास स्टेप्स होंगे उसको हम बोल सकते हैं कि अगर लेट्स से मैं इस सारे प्रोसेस है मेरे पास ऑफ मेकिंग अ बर्गर, राइट, व्हिच विल बी, लेट्स से अगर हम इसको सिंपलीफाई कर दे तो वी कैन
make it come under these 5 steps, which will be getting buns, toasting them, frying the chicken, assembling them, adding the sauces, and we have a burger, right? अब ये जो सारा तरीकेकार है ना, ये बेसिकली अगर इसको मैं एक वर्ड दूं तो ये हमारे पास आ गए स्टेप्स. स्टेप्स फॉर व्हाट? स्टेप्स फॉर मेकिंग अ बर्गर. बट नाउ अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर में कभी भी किसी चीज के स्टेप्स मेरे पास हो ना, कि मैं बोलूं कोई मेरे पास एक एक्शन है, कोई मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, कोई मैं गेम बनाना चाह रहा हूँ, तो उसको बनाने के लिए जो मेरे पास स्टेप्स होते हैं ना, तो उसको हम स्टेप्स नहीं बोलते, वी कॉल इट एल्गोरिथम. And so this is basically where the word algorithm comes from. It is kind of a number of steps that are executed to make a specific thing into existence, या फिर for computing the execution of some task. इसको बोलते हैं algorithm. अब we are starting off with chapter number 7, जिसका नाम ये है कि algorithm design and problem solving. So हम इस chapter number 7 में पढ़ेंगे ये कि how can we basically make algorithms, जो कि बेसिकली हमने तरीके पढ़ने हैं जिसके अंदर हम ये स्टेप्स डिफाइन कर सके कि यार किसी बंदे को मैं स्टेप्स बताऊं कि यार मेक अ कैलकुलेटर फॉर मी, तो उसके हम स्टेप्स किन किन तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम बोले एल्गोरिथम डिजाइन. एंड देन वी आर बेसिकली गोइंग टू बी लुकिंग अप एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक हाउ डज द एल्गोरिथम डिजाइनिंग मेथड अलाउज अस टू सॉल्व सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अब ये तो आप लोग को जनरल समझ आ गई होगी एल्गोरिथम क्या है वगैरह वगैरह वगैरह. अब अगर मैं ये बोलूं कि लेट्स से मैं ना अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, लेट्स से आई एम काइंड ऑफ क्रिएटिंग माय वेबसाइट भी छोड़ो, आई एम काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन फॉर माय टीचिंग कोर्स, सही है, विच माइट बी लाइक कोड कैटलिस्ट, जो कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी है. कोड कैटलिस्ट के ऊपर अगर मैं वो बनाना चाहूँ, क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन, तो अगर कोई नॉन सीएस गए हो, या इवन आप लोग के जहन में भी ये होगा कि कोई अगर प्रोग्रामर को मैं हायर करता हूँ, या दिस इज चैप्टर नंबर 7, अगर मैं कोई प्रोग्रामर को हायर करता हूँ तो ही और शी विल बी लाइक कि चलो व्हाई नॉट डायरेक्टली गो एंड मैं कोडिंग स्टार्ट करूँ. इफ आई एम मेकिंग इट लेट्स से इन C++, तो वो डायरेक्टली सोच रहा होगा कि मैं C++ में कोडिंग स्टार्ट करूँ. बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. देयर इज बेसिकली अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेजेस that needs to be done before a standard model is created. So हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि a programmer needs to go through a specific set of stages before the final standard, before the final application is created. एंड इसको जो बोलते हैं ना, ये जो हमारे पास ये स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेजेस है, जो कि हर बड़ा प्रोग्राम जब आप बनाते हो तो उसके हमने इंश्योर करना होता है कि हम कोई प्रोग्राम बनाएं तो वो इन स्टेजेस से गुजरे. इस सारे मैकेनिज्म को बोलते हैं द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, दिस इज बेसिकली known as प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अगेन जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आपके बुक के चैप्टर के एंड के अंदर गिवन होती है. यहाँ पे जो भी मैं आप लोग को डेफिनेशंस या कुछ बता दूं, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप लोग को अच्छे से समझ आए. सो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म PDLC भी है. PDLC होता ये है कि ये एक सेट ऑफ स्टेजेस है, जो कि जब अगर मैं लेट्स से ऐप बना रहा हूँ तो मैंने स्टेज नंबर 1 पहले करनी है, फिर स्टेज नंबर 2 करनी है, फिर स्टेज नंबर 3 करनी है, फिर स्टेज नंबर 4 करनी है. एंड could you show the instruction? Which instruction buddy? ये वाले, ये देख लो. सॉरी फॉर दैट. लेकिन अब हमने ये स्टेप्स को फॉलो करना है. अब हमें ये भी पता लग गया कि यार अगर कोई बंदा ऐप बना रहा है तो वो फौरन तो ये नहीं कर सकते कि अगर उसने ये बर्गर बनाना है तो वो फौरन जाके उसके पास फाइनल बर्गर आ जाए. उसके जहन में पहले आएगा ना कि यार मैं बर्गर बना रहा हूँ, तो ही हैज टू थिंक कि मैं किन किन चीजों को मैंने लाना है. ही नीड टू गेट द बन्स, ही नीड टू गेट द चिकन, ही नीड टू गेट दो सॉसेस. पहले ये सोचेगा, एक जहन में प्लान बनाएगा, फिर मे बी ही माइट राइट देम ऑन सम सॉर्ट ऑफ चिट कि यार मैं ये लिख रहा हूँ एंड इफ आई गो टू मार्केट आई एम गोना गेट ऑल ऑफ देम. एंड देन फाइनली ही इज गोइंग टू मेक अ मॉडल जो कि ये कुकिंग कर रहा है, एंड देन एट द एंड ही इज गोना गेट द ऐप. अब ये जो मैंने आपको बताया ये एक
small सी example है of program development life cycle, because when we kind of create a program we also need to follow the same life cycle जिसके अंदर multiple steps है. अब we will be discussing all of the stages कि हर stage के अंदर होता क्या है. So the very first stage जो कि आपको पता होना चाहिए ना कि जब भी कोई बंदा प्रोग्राम बनाते हैं या कुछ भी, वो सबसे पहले जो करते हैं ना वो एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस इज बेसिकली योर स्टेज वन. अब फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि वी आर काइंड ऑफ एनालाइजिंग द डेटा. सो व्हेन वी से कि वी आर डूइंग एनालिसिस, इसका ये मतलब है कि वी आर clearly defining MING defining the problem. मतलब हम देख रहे हैं कि यार जो हमने चीज बनानी है उसमें डेफिनेटली व्हेन वी यूज द वर्ड प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, उसका मतलब ये होता है कि डिफाइनिंग, ओ क्या कर रहा हूँ, माय बैड, clearly defining the problem. Whenever I say the word defining the problem, इसका मतलब ये है कि I am looking कि यार मैं एक जो चीज बना रहा हूँ उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, हमने क्या करना है कि वो हमारे पास आ जाए. तो हम देख रहे हैं हमने वेब सर्वर बनाना है, दैट्स अ प्रॉब्लम. हमने कोई बग आ रहा है, ये दैट्स अ प्रॉब्लम. सो व्हेन वी से कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू एनालिसिस. इसके अंदर हम देखते हैं कि यार हमने क्या बनाना है. सो वी क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम, व्हिच इन अदर वर्ड्स कैन आल्सो बी रिटन एज कि वी आर काइंड ऑफ डूइंग कि हम नोट डाउन करें कि रिक्वायरमेंट्स और उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है. तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या बनाना है, किस तरीके से बनाने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सबसे पहले जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं, कोई कोडिंग कर रहे होते हैं, सो वी नीड टू डू दिस एनालिसिस. उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम एक दफा एनालिसिस करने पे लग जाते हैं ना, जिसका मतलब हम देख रहे हैं कि यार क्या बनाना है, किस तरीके से वो काम करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तो हम पहले तो डिफाइन कर दिया कि प्रॉब्लम क्या है. फिर हम ये करेंगे कि वी आर गोना मेक यूज ऑफ समथिंग नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. सो वी आर यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि यार हम फोकस करते हैं ऑन व्हाट मैटर्स. फोकस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स. ऑन व्हाट मैटर्स मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक वो बना रहा हूँ, एप्लीकेशन बना रहा हूँ फॉर माय ऑनलाइन क्लासेस, सही, तो मेरा प्रॉब्लम ये होगा कि आई शुड हैव सम प्लेस वेयर only registered students can log in, right? So I need to have some sort of, I have this requirement specification कि it should have kind of a login thing. अब ये मैं जब प्रोग्राम बना रहा हूँ इस तरह नहीं कि मैंने अपना IDE खोल दिया और फिर मैं ये करने लग जाऊँ. ये पहले मैं डिजाइन करूंगा कि ओके आई नीड टू हैव समथिंग जिसके अंदर लॉगिन हो, फर्स्टली जिसके अंदर मैं अपने लेक्चर्स को अपलोड कर सकूं, जिसके अंदर कोई लाइव पोर्टल का ऑप्शन हो. आई शुड हैव ऑल दीज ऑप्शन. सबसे पहले मैं ये करूंगा. फिर जब मैंने एक चिट बना दी, आई एम गोना मेक अ चिट लाइक से, ये मैंने एक बड़ी सी चिट बना दी जिसमें मैंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिख दी. फिर आई विल मेक यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब है कि मैं सिर्फ उन चीजों पे फोकस करूंगा जो कि सही में मुझे जरूरी चाहिए. मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई और चीज डाल दूं कि क्लाउड स्टोरेज, तो अगर क्लाउड स्टोरेज ऐसी चीज है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मैं शौक के लिए डालूं, तो इसको मैं कट डाउन कर दूंगा. या फिर अगर यहाँ पे कोई फजूल इस तरह की चीज आ रही हो तो उसको मैं कट डाउन कर दूंगा. आई विल ओनली बी लुकिंग एट कि यार मैं एनालाइज करूं कि व्हाट इज दैट थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी. एंड सो आई एम गोना बी मेकिंग यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हो गई है कि आई विल मेक यूज कि यार मुझे कौन सी चीज फॉरन चाहिए विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो मैं कोई यूजलेस चीज के ऊपर टाइम ना करूं. अब लाइक फॉर इंस्टेंस कोई बंदा एमी प्रोग्राम बना रहा है ना, वो जाके उसका सबसे बड़ा मसला ये होगा उसे पता ही नहीं होगा कि यार क्या इंपॉर्टेंट है. वो चीजें बनाता जाएगा फिर कहेगा यार ये क्या फजूल है, हटाओ. तो व्हेन वी आर डूइंग एनालिसिस उसका हमें फायदा ही होता है कि हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार व्हाट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट्स इंपॉर्टेंट उस पॉइंट को हम कर लेते हैं तो इट इज इजियर फॉर अस व्हेन वी आर काइंड ऑफ डूइंग द कोडिंग पार्ट. अब जब हमने एब्स्ट्रैक्शन भी कर ली, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर दिया, अब इसके बाद ये होता है कि वी मेक यूज ऑफ समथिंग नोन एज डीकॉम्पोजिशन. सो हम यूज करते हैं डीकॉम्पोजिशन, जिसका मतलब ये है breaking the problem, एक सेकंड, breaking the problem into smaller parts. इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको अभी के लिए मैं बता देता हूँ व्हेन आई से डीकॉम्पोजिशन, इसका ये मतलब है कि अगर मैं अभी ये बोलूँ आप लोगों से कि यार मैंने ना एक ऐप बनाने जो कि अलार्म का एक्शन करे, अलार्म ऐप मैंने बनाना है. सो इफ आई वांट टू क्रिएट अलार्म ऐप, तो क्या मैं डायरेक्ट कोडिंग करने लग जाऊं? We leave the one, yes, exactly, we leave the one that aren't important. Like if I'm kind of coding on my own without even thinking, तो शायद मैं कोई useless चीज डाल दूं. तो when we do the analysis part, we see कि यार कौन सी चीज important, and if there is something useless which might not be required, तो उसको हम छोड़ देते हैं. सही है? एक सेकंड यार गाइस, हाँ यार कर लो.
वो भी पढ़े, वो डाल दो। हाँ सही है, सही है, सही है। अच्छा, जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है कि ये आपने अच्छा पूछा है अहमद, आई डोंट नो मैंने मुझसे मिस क्यों हो गया, लेकिन लेट्स से यहाँ पे ही कर लेते हैं। सो योर पेपर नंबर 2 इज बेसिकली ऑफ 75 मार्क्स। सही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 to 11 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर होता ही है कि द लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका दो पार्ट्स होंगे, जो फर्स्ट सेक्शन होगा ना, फर्स्ट सेक्शन मतलब आखिरी क्वेश्चन को छोड़ के, दैट विल बी बेसिकली प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स, छोटे मोटे 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा लॉजिक गेट्स, यहाँ पे आएगा विच इज वेरी सिंपल हमारे पास। इसके बाद डेटा बेसिस आएंगे एंड वो सारी चीजें आएंगी जो हमने इंशाल्लाह इन टॉपिक्स में पढ़ने हैं। जो आखिरी क्वेश्चन होगा ना, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा 15 मार्क का सिनेरियो क्वेश्चन। 15 मार्क सिनेरियो क्वेश्चन। इसका ये मतलब होगा कि यार हमने क्या कहते हैं, हमें एक सिनेरियो दिया जाएगा, वो बोलेंगे कि नो इट विल बी टोटली सूडो कोड, इट विल बी टोटली सूडो कोड। सैफुल्लाह सही बात कर रहे हो। अब इट विल, यू डोंट हैव टू नो एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। अब जो 15 मार्क का सिनेरियो क्वेश्चन है ना, उससे बहुत लोग डरते हैं। दे फील लाइक कि यार मैं ये ना किया ना तो मेरा ए स्टार चला जाएगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो पहले 3 चीजें ये बहुत ईजी है। दीज आर ऑफ 60 मार्क्स एंड देन वी हैव 15 मार्क्स के आखिरी क्वेश्चन। अब द थिंग इज, बहुत लोग ये नहीं रियलाइज करते कि इवन इफ यू आर नॉट गुड विद 15 मार्कर, नो नो नॉट एट ऑल, यू डोंट नीड टू नो एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें सिर्फ सूडो कोड पढ़नी है, नो पाइथन एट ऑल, नो जावा, नो सी प्लस प्लस, नथिंग, ओनली सोनली पाइथन, सॉरी ओनली सोनली सूडो कोड, नो पाइथन। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, वो पुराने होते थे प्री 2023 आपके मिनी से क्वेश्चंस आते थे जिसमें वो आपको बोलते थे कि राइट प्रोग्राम कोड। 2023 सिलेबस अपडेट के बाद देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग। सही है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब जो आपके अरियान, आप मुझे ये बता दें, आप लोगों ने कहाँ पे ये पाइथन का देखा है? वैसे इसका कोई वो नहीं है, इट्स टोटली सूडो कोड, सो यू डोंट नीड टू वरी। सही है, वो पहले आते थे। आई विल हैव टू सी कि अगर स्पेसिमन पेपर आया हुआ है उसके अंदर भी चेक कर लेते हैं, नो मसले की बात। सही है। अब सीन ये है कि बहुत से लोग समझते हैं, रुको मैं चेक भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए स्पेसिमन पेपर। किधर गया स्पेसिमन पेपर, और ये कोड है आपका। अच्छा, अब सीन ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आपका जो 15 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, वो अगर खराब हो जाए ना तो आपका ग्रेड नहीं आता। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आता हो ना, थोड़ा सा भी आता हो ना, तो यू आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। एंड सही है, एंड व्हेन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप लेट से खुदा न खास्ता आपका एक पेपर भी आगे पीछे हो गया ना, पेपर नहीं, अगर आपका 15 मार्कर ना भी हुआ ना, यू कैन स्टिल गेट 4 to 5 मार्क्स। बट इफ यू एस द अदर पार्ट, जब मैं अदर पार्ट की बात करती हूँ तो आई बेसिकली मीन टू से कि अगर आप लोग क्या कहते हैं उसको सही तरीके से कर लो। मैं आप लोग को यहाँ सिलेबस खोल रहा हूँ, उस पर टाइम लग रहा है कि लाइक अगर आप लोग को ज्यादा नहीं भी पता ना, ज्यादा आप लोग को नहीं भी पता, लेकिन फिर भी आप उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग का कर लो, यू कैन गेट लाइक 6-7 मार्क्स इजीली। तो अगर आप यहाँ पे 50 ले लें एंड 6-7 यहाँ पे, तो यू कैन इजीली टच 60। एंड इफ यू टच 60 up here and 60 in your P1, तो दैट्स 120, जो कि इजीली आपको ए स्टार के ऊपर ले आता है। एंड इफ द पेपर इज इजी, तो डेफिनेटली ये 15 मार्क्स जो इस साल मई जून 2025 का आया था ना, दैट वाज एक्सट्रीमली इजी, एक्सट्रीमली इजी। मैं कहूँ उसमें आम सा जिसको बिल्कुल नहीं आती ना, थोड़े से भी बेसिक पता है, वो 15 और 15 ले सकता था। इस वजह से थ्रेशोल्ड ऊपर होता है, वरना थ्रेशोल्ड इतना ऊपर यूजुअली नहीं होता। अब जो स्पेसिमन पेपर है वो वही स्पेसिमन पेपर है जो कि हमारे टाइम में था। देयर इज नो न्यू स्पेसिमन पेपर एंड द पार्ट इज कि उसके अंदर यू डू नॉट नीड टू। अच्छा, नाउ लेट मी पेस्ट द पिक्चर। द थिंग इज, यू हैव द ऑप्शन टू राइट इन बोथ सूडो कोड एंड प्रोग्राम कोड। सही है, ये देखो, दिस इज काइंड ऑफ, अभी आप लोग को डरावना लग रहा होगा, लेकिन फिर आप में से मैं बाद में पूछूंगा तो बहुत आसान लगेगा। दिस इज द 15 मार्क क्वेश्चन, सही, सिनेरियो बेस्ड। इसके अंदर वो आपको क्लियरली, दिस इज स्पेसिमन, ओके, दिस इज द स्पेसिमन पेपर। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन। अब इसका ये मतलब है व्हेन आई से प्रोग्राम कोड, तो इसलिए आपके बुक के अंदर यू हैव पाइथन एंड ऑल दैट स्टफ, बट we are only going to be going with pseudocode. Why? Because जो आपके first 60 मार्क के क्वेश्चंस है ना, first 60 मार्क जो कि आपकी, ये मैंने आपको बताया ना पहले 9 क्वेश्चंस,
तो ये जो आपकी ये है ना, इसके अंदर जितने क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी ओनली हैविंग सूडो कोड। वहां पे इफ यू राइट प्रोग्राम कोड तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो इस वजह से वी नीड टू इंश्योर कि अगर हम यहाँ पे सूडो कोड की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वही सूडो कोड हम यहाँ पे भी यूज करें ताकि सेम ही प्रैक्टिस रहे। अब आप इसके लिए पाइथन अलग से सीख रहे हैं, इसके लिए फिर आपको सूडो कोड करें तो आपका बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि आप सूडो कोड के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि वो पहले वाले पार्ट में भी वही यूज होगा एंड दूसरे वाले में भी वही यूज होगा, तो बड़ा विन विन सिचुएशन आपके लिए हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को ये बोले कि यार यू शुड यूज पाइथन या समथिंग, तो या यू आर अलाउड टू यूज पाइथन ओनली इन द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड कंसीडरिंग पहले वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होगी। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने अपने एग्जाम दिए, मैंने पाइथन नहीं सीखी, लाइक अपने पैशन के लिए चलो सीखी होगी, लेकिन इट वाज समथिंग जो कि आपसे, अब मैं आपको, यार ये देख लो, मैं आप लोगों को ना स्पेसिमेन पेपर दिखा देता हूँ, रुको। दिस इज द स्पेसिमेन पेपर नंबर 2। अब इसके अंदर मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ कि आपके ओवरऑल पेपर के अंदर क्या चीज है। अब ये देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज सूडो कोड सही है, कोई पाइथन नहीं है। ये देखो, यूज अ सिंगल लूप टू राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड, कहीं प्रोग्राम कोड नहीं है, सही है। नीचे गए, ये तो चलो जनरल थ्योरी है, ये छोड़ो, ये भी वही है। ड्रॉ स्ट्रक्चर डायग्राम, चलो इसमें तो कोडिंग है नहीं अभी। ये क्या है? दिस इज टोटली सूडो कोड, सही है। दिस इज अगेन सूडो कोड, लिखा हुआ भी है सूडो कोड। नीचे गए, सूडो कोड, यहाँ पे देखो राइट सूडो कोड स्टेटमेंट, फिर गए लॉजिक गेट्स, इजी पीजी, सही है। दिस इज फ्लो चार्ट, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नीचे गए, ये भी फ्लो चार्ट ही है। फिर नीचे गए, ये भी सूडो कोड, देखो सूडो कोड आया। then again this is database is not that, फिर ये देखो write pseudocode statements, फिर again this is again write pseudocode statements, and finally you get the 15 marker जिसके अंदर you have the option to write pseudocode and something apart from pseudocode। तो अब मुझे ये बता दो, इसमें कहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि you need to write in Python? कहीं भी नहीं आता। So if you only master pseudocode, you are super good to go। ये एवी आप लोगों को अगर टीचर्स ने बोला हो, पाइथन जाके आपको सिर्फ A2 के अंदर करनी होगी, जहाँ पे एक पूरा पेपर होगा जहाँ पे यू आर ओनली गोइंग टू बी कोडिंग विद पाइथन। उसके बगैर अगर आपका टीचर नहीं बोल रहा, अच्छा, सूडो कोड मीन्स जो हम सीखेंगे, सूडो कोड अभी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। सूडो कोड इज दैट इंग्लिश काइंड ऑफ, हाँ, ये जो है ना, दिस इज द 15 मार्क का क्वेश्चन, सही है। इसके अंदर जो आपका प्रोग्राम कोड है ना, दिस प्रोग्राम कोड, whenever I say the word program code, नहीं सॉरी यार, उल्टा कर दिया। whenever I say the word program code, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि this program code basically refers to Python। तो इसका मतलब है पाइथन या जावा या फिर C++, इसके अंदर अगर आप लोग कोडिंग करें। सूडो कोड इन सिंपल अल्फाज इज सिंपली इंग्लिश बेस्ड कोडिंग, मतलब अगर आप इंग्लिश अल्फाज को कोडिंग वाले स्टाइल में लिखो ना, तो दैट इज सूडो कोड। लेकिन द बेनिफिट वी गेट व्हाइल डूइंग सूडो कोड इज कि यार आपके सूडो कोड में कोई रूल्स नहीं होते, ग्रामेटिकल रूल्स इतने नहीं होते जिस तरह पाइथन के अंदर अगर आप लोग कर रहे हो ना। तो पाइथन के अंदर अगर आपने कॉलन मिस कर दिया, इफ लेट्स से एज इज इक्वल टू 10, तो अगर आप लोगों ने कॉलन मिस कर दिया, लेट्स से कोई ये मिस कर जाता है, तो उसका -1 हो जाएगा या माइनस हो जाएंगे मार्क्स। लेकिन जो आपके सूडो कोड है उसके मल्टीपल पैटर्न्स है, तो उसके अंदर अगर आप ये कर दो ना, इफ एज इक्वल्स टू 10 फिर XYZ और यहाँ पे कोडिंग कर, तो इसके ऊपर नहीं करेगा, कटेगा। और अगर आप यहाँ पे डाल भी दो तब भी नहीं कटेगा, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ समथिंग जिसके अंदर आपको इतना ये लोग मसला नहीं बनाते, सही है। क्योंकि इसका कोई सेट रूल है नहीं, हम आपको सिलेबस वाले पढ़ाएंगे ताकि योर वे ऑफ राइटिंग सूडो कोड इज सिमिलर टू दैट मेंशन इन योर सिलेबस एंड इन योर एग्जाम्स, ताकि आप लोग के मसला ना हो। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यू डू नॉट नीड टू नो एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। कोई आपको बोले करना है तो आप उन्हें बोल दो कि मुझे कोई आप पेपर निकाल के दो 2023 के बाद। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोग जो भी अभी देख रहे हो ना, वो आपने 2023 ऑनवर्ड्स देखना है। जो आपके प्री 2023 थे उनके अंदर देयर वर अ फ्यू क्वेश्चन जो बोलते थे कि प्रोग्राम कोड लिखो। अभी आप लोग का वो खाता बिल्कुल है ही नहीं। अल्लाह करे वी एंड द होल थिंग इन द राइट टाइम। तो मैं खुद ये इस तरीके से इसी ऐप के ऊपर ना इस तरह सारा का सारा कोड आप लोग को लिख कर दूंगा। एंड मजे की बात ये होगी, इंशाल्लाह आप लोग खुद बोलोगे कि सर ये तो इतना इजी हमें आता था और इस तरह चीजें, सही है। तो ये काफी लोग ना स्कूल्स में गलत मिसगाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको ये जरूरी है कि पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, समझ गए। इज दिस क्लियर कि वी आर ओनली गोइंग टू बी लर्निंग सूडो कोड एंड नॉट प्रोग्राम कोड एट ऑल, समझ गए एवरीवन? गुड। चलो रेहान, आपने टेंशन नहीं लेनी, सही है, ऐसा ही है, आप टेंशन ना लो, सही है।
आप यकीन रखो मेरे ऊपर इंशाल्लाह। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो मैं आपको ये बोलूंगा, आस्क योर स्कूल टीचर कि मुझे आप कोई क्वेश्चन दिखा दे जिसके अंदर वो सोलली मुझे बोल रहा है कि प्रोग्राम कोड के अंदर हो। एंड अगर इस तरह क्वेश्चन आपको 23 के बाद आता है तो इट्स माय ड्यूटी, मैं आप लोग को पाइथन पे करा दूंगा। लेकिन आप उनसे पूछ लो, इस तरह का कोई क्वेश्चन है ही नहीं टाइम, सही है। नाउ लेट्स रिमूव द होल थिंग बिकॉज वी वर डिस्कसिंग, एक चीज और कहानी बड़ी दूसरी तरफ चली गई। इस सबको डिलीट कर दो। सो नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट एनालिसिस में हमारे पास आखिरी चीज व्हिच वाज डीकंपोजिशन। नाउ डीकंपोजिशन मींस ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। व्हेन आई से डीकंपोजिशन, इसका मतलब ये हुआ कि यार अगर मैं एक प्रोग्रामर हूं एंड मैंने बनाना है अलार्म ऐप, तो अलार्म ऐप बनाना कोई इस तरह तो नहीं है मैं उठ के आया और मैं कोडिंग करने लग गया। मैंने पहले देखना है कि अलार्म ऐप के अंदर मैं क्या चीजें करूंगा। तो आई माइट राइट कोड फॉर मे बी सेटिंग टाइम, I might write code for maybe alarm tone. I might write code for, let's say, snooze option, जो हम लोग snooze नहीं कर देते, and option. तो ये जो मैं अभी क्या किया मैंने, I kind of broke the big problem alarm into multiple smaller parts. I made one setting time, alarm tone, and snooze option. And अब मैं इसको अलग अलग कोड करूंगा, code this, एंड कोड दिस, एंड आखिर में उनको असेंबल कर दूंगा तो आई विल हैव द अलार्म ऐप। अब अगर लेट्स से, या आई विल डेफिनेटली शेयर द नोट्स इंशाल्लाह, इजी सी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक साथ कोडिंग करने लग जाऊं ना तो काफी मुश्किल होता है। क्यों? बंदे को पता नहीं होता यार मैंने अभी क्या लिखना है, किस चीज के बारे में कोड पहले लिखूं। तो व्हाट प्रोग्रामर्स डू इज कि वो एनालिसिस पार्ट में ना बड़े प्रॉब्लम, अगर वो जो अलार्म बना रहे अलार्म ऐप उसके अंदर, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स कि यार हमने कौन सी चीज के कोड लिखने हैं। अब आई हैव 3 मेन थिंग्स जिसके ऊपर मुझे कोड लिखना है। आई शुड नो हाउ टू सेट टाइम, आई शुड नो हाउ टू चेंज द अलार्म टोन, एंड आई शुड ऑल्सो मेक कोड कि यार जो स्नूज ऑप्शन के लिए मैं कोई काम कर सकूं। once I have this map in front of me, तो it will be way more easier for me कि यार चलो मैं पहले सेटिंग टाइम करूंगा, फिर अलार्म टोन करूंगा, फिर स्नूज ऑप्शन वाला कर दूंगा, फिर मेरे पास फाइनल ऐप बन जाएगी। दिस इज सिमिलर टू द सेम थिंग कि अगर आप लोगों में से कोई अभी प्रिपरेशन करे एग्जाम की, तो उसने देख लिया कि यार मैंने अभी ना चैप्टर नंबर 6 को करना है। अब चैप्टर नंबर 6 को अगर आप ब्रेक डाउन कर लो, योर टेस्ट इज ऑन लेट्स से नेक्स्ट मंडे, तो अगर आप एक रात पहले बैठ के उसको करने लगे तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रेक इट इनटू 3-4 पार्ट्स, मतलब आप उसको 3 किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मे बी एक दिन आपने जाके ना ऑटोमेटेड सिस्टम्स कर दिया, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, एक सेक्शन आपने कर दिया रोबोटिक्स का, एंड एक सेक्शन आपने कर दिया एआई एंड मशीन लर्निंग का। अब हमने उसको 3 अलग पार्ट्स में कर दिया। अब अगर एक ही दिन में मैंने पढ़ना हो, बट आई माइट बी लाइक चलो सुबह के टाइम पे मैं ये कर लूंगा मॉर्निंग, सही है, लंच के बाद में ये कर लूंगा, एंड रात को इवनिंग के टाइम में मैं ये कर लूंगा। अब व्हाट्स द बेनिफिट? I broke the bigger problem, which was basically preparing for chapter number 6 into sub problems. And अब मैं एक एक को अलग अलग करूंगा which can help me कि यार अच्छे से तैयारी हो जाए। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 6 को एक ही गो में करना चाहूँ, एंड मे बी अगर मैं करते जाऊँ एंड आई माइट बी लाइक चलो हो गई तैयारी, बट इफ आई मिस एआई एंड मशीन लर्निंग, लेट्स से बुक नहीं है मेरे पास, मैं वैसे ही रैंडमली सोच रहा, क्योंकि कोडिंग के अंदर आपके पास कोई बुक थोड़ी होती है, राइट? आप खुद सोच रहे होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि राइट एन आंसर ऑन द होल ऑफ चैप्टर नंबर 6, तो अगर आप लिखते जाओ एट द एंड यू मिस एआई एंड मशीन लर्निंग, तो क्या आपको फायदे नहीं, आप एक मेन चीज मिस कर गए। सो व्हाट द प्रोग्रामर्स डू इज कि वो उस प्रॉब्लम को डीकंपोज करते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ताकि वो उसको अलग अलग अच्छे तरीके से डील आउट कर सके, एंड व्हेन दे डील विद दैट दिस वे, तो उनका बड़े अच्छे से प्रोग्राम बन जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज डीकंपोजिशन। अब जब ये सारा कुछ हो जाता है ना, जब ये सारा का सारा ये वाला खाता हमारे पास हो जाता है, तो द थिंग इज कि द आउटकम ऑफ ऑल दिस इज कि द बेनिफिट वी गेट इज कि प्रोग्रामर के पास ना एक लिस्ट बन जाती है, लिस्ट ऑफ व्हाट द प्रोग्राम मस्ट डू। तो अब उसके पास एक गाइडलाइन बन गई कि यार जो मैं एक प्रोग्राम कोड करूंगा वो क्या क्या चीजें कर सके, उसके अंदर क्या क्या खासियत होंगे। तो मेरे पास एक लिस्ट बन जाएगी इस तरह कि यार आई एम मेकिंग एन ऐप जिसके अंदर आई नीड टू बी एबल टू डू दिस थिंग, आई नीड टू बी एबल टू डू दिस थिंग, आई नीड टू बी एबल टू डू दिस थिंग।
इस चीज को करने के लिए स्मॉलर मेरे पास सब प्रॉब्लम्स है जिसको ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, देन आई हैव अ स्मॉलर पार्ट इस तरह एंड फिर आई हैव दिस। कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज नहीं है तो उसको मैंने स्किप कर दिया। दिस होल थिंग जो मेरे पास एक रिपोर्ट बन गया ऑफ व्हाट टू डू इज नोन एज एनालिसिस। So whenever I need to create a big program, I need to make sure that the very first thing I will be doing is analysis. कि मैं analyze कर दूं कि मैंने क्या बनाना है, उसका क्या चीज करनी है। And this is the stage number 1 whenever we are going through program development. And इस cycle को basically बोला जाता है program development life cycle, जिसका पहला stage हमने अभी discuss कर लिया। Now we are basically going to be discussing the second stage, which is basically design. सही है, design। अब design stage number 2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यही अलार्म कोड वाले को मैं कोड करने लग जाऊं तो क्या मैं फौरन जाके अब कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाऊं, मैं सेटिंग टाइम को करने लग जाऊं या अलार्म टोन को करने लग जाऊं या स्नूज ऑप्शन को कोड करने लग जाऊं? नहीं, राइट। आई नीड टू सी कि यार इसको मैं करूंगा कैसे, हाउ, यार इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि यार हाउ विल आई क्रिएट द कोड फॉर लाइक मे बी सेटिंग टाइम। इसके पीछे हाउ वाले क्वेश्चन तो आएगा ना कि मैं क्या करूंगा। तो द स्टेज नंबर 2 विच इज बेसिकली डिजाइन वाला, उसके अंदर वी डिसाइड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड व्हेनेवर वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। We kind of whenever I use the word solving the problem, इसका मतलब है मैं अपने पास ना एक रोड मैप बना लूं। एंड दैट रोड मैप विल बी लाइक कि यार अगर मैं कोई इस तरह प्रोग्रामिंग से पहले, प्रोग्राम करने से पहले मैं एक अपने पास एक रोड मैप बना लूं कि यार मैं इस तरह करूंगा फिर इस तरह करूंगा। बिल्कुल अहमद, राइट पॉइंट, कि अगर मैं इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग की तरह मैं एक रोड मैप बना दूं कि मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, या इन सिंपल अल्फाज मैं अपने पास ना एक एल्गोरिथम बना लूं। एल्गोरिथम जो हमने सबसे पहले चीज क्या पढ़ी थी, एल्गोरिथम, सेट्स, स्टेप्स, राइट। मैं इस तरह अपने पास एक स्टेप्स कर लूंगी, मैं क्या क्या एग्जीक्यूशन के लिए स्टेप्स करूंगा तो वो मैं बना लूं, तो दैट इज नोन एज डिजाइन। अब आप जब सीएस पढ़ रहे हो ना तो यू कैन बेसिकली मेक डिजाइंस इन 3 ways। You can have 3 tools of making basically a design for a specific program. The first one is basically known as structure charts. आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड फिर आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी आप इसको छोड़ो। एक है स्ट्रक्चर चार्ट्स जो कि काइंड ऑफ ये जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम को ब्रेक डाउन किया ना, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर चार्ट। कि आप सेटिंग टाइम के मैं नीचे और चीजें लिख दूं तो मुझे एक आइडिया हो रहा है कि मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। सही है। सेकंड तरीका ऑफ मेकिंग अ डिजाइन ऑफ डिजाइनिंग माय प्रोग्राम विल बी बाय यूजिंग फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट्स ये मतलब होते हैं, अभी हम फ्लो चार्ट्स को भी आगे पढ़ेंगे कि अगर मैं इस तरह का वो करूंगे, सबसे पहले XYZ होगा, फिर उसके बाद आप ये चीजें करो, फिर अगर कोई कंडीशन आई तो इस तरह का हम डायग्राम बनाए, उसके ऊपर ये है, फिर अगर यस हो गया इधर चले जाओ, नो हो गया इधर चले जाओ, एंड आई कैन हैव अ मैप कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली लूप्स वाला सीन, फ्लो चार्ट्स। उसके बगैर द थर्ड वे ऑफ डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम इज कि वी कैन मेक यूज ऑफ सूडो कोड, जो कि अभी तक आप लोग के ज़हन में जितने इंग्लिश के रिलेटेड वो है ना, उसको सूडो कोड बोला जाता है। तो सूडो कोड या स्ट्रक्चर चार्ट या फ्लो चार्ट के अंदाज में जब भी हम कोई बड़े प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, हम इंश्योर करते हैं कि हम ये हाउ वाले क्वेश्चन को ना हम एक रोड मैप बनाए बिफोर सेटिंग फॉर द एक्चुअल कोडिंग। हम अपने पास एक रोड मैप बना ले कि हमने क्या करना है यूजिंग वन ऑफ दोस 3 मेथड्स। अब वी विल बी डिस्कसिंग ऑल 3 मेथड्स इन ग्रेट डिटेल वेयर वी नीड टू एनालाइज, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि एक प्रॉब्लम है, उसका स्ट्रक्चर चार्ट से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, फ्लो चार्ट से किस तरह हो सकता है, सूडो कोड की तो बहुत आपके पास आएंगे। लेकिन दिस सेकंड स्टेप इज बेसिकली नोन एज डिजाइन, जहां में हम बेसिकली डिसाइड कर लेते हैं कि यार करना क्या चाहिए। एंड द वेरी सोल गोल ऑफ दिस होल स्टेप इज कि ताकि प्रोग्रामर should know exactly what tasks to do and how they connect। मतलब मैं अगर कोई ये अलार्म ऐप बना रहा हूँ तो किस तरीके से मैं अपने पास एक रोड मैप तो बनाऊंगा ना कि यार ये अगर मैंने ये एक्शन करना है या ये एक्शन करना है तो वो कैसे करेगा, किस तरह टास्क चलेंगे। एंड अगर मैं स्नूज वाला ऑप्शन बना रहा हूँ, मैं सेटिंग टाइम वाला कर रहा हूँ, तो उस सबको मैं कनेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे करूंगा। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ स्टेप नंबर 2 विच इज बेसिकली ये आपका क्या कहते हैं, डिजाइन। अब ये हमने 2 स्टेप्स तो पढ़ लिए कि प्रोग्रामर पहले एनालिसिस करेगा फिर वो डिजाइन वाला खाता करेगा। अब इसके बाद क्या होगा,
तो जब एक दफा उसके पास सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाए, उसने ये लिस्ट बना लिया, उस लिस्ट का उसने एक रोड मैप के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि आपने ये चीजें करनी है, एंड नाउ ही इज फुली रेडी कि यार आई एम गुड टू गो, कि अभी मैं ना फुली रेडी हूँ टू राइट द कोड बिकॉज आई हैव द होल प्लान इन फ्रंट ऑफ मी। तो अब प्रोग्रामर जाएगा अपने स्टेज नंबर 3 के अंदर, विच इज नोन एज कोडिंग एंड आइटरेटिव टेस्टिंग। This is basically your stage number 3. अब स्टेज नंबर 3 जस्ट फ्रॉम, आप लोग को भी आइडिया हो चुका होगा कि जब हमारे पास एक रोड मैप भी आ गया, सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, तो नाउ द प्रोग्रामर विल बी इन अ स्टेज के वो कोडिंग कर सकते हैं, राइट? एंड सो दिस इज द स्टेज वेयर एक्चुअल प्रोग्रामिंग टेक्स प्लेस। एक्चुअल प्रोग्रामिंग टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे आपके सारे एक्चुअल कोडिंग होती है, सारे एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं, आपकी जितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है ना, जब हम बोलते हैं कि यार अगर मैं अलार्म ऐप है उसको मैं छोटे स्नूज ऑप्शन की प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिया, अलार्म टोन का बना दिया, ये सेटिंग टाइम कर दिया, तो ये जो छोटे इसके अंदर सब सेक्शंस है ना, लाइक मैंने स्नूज ऑप्शन का एक सब प्रॉब्लम कर दिया, अलार्म टोन का अलग एक छोटा वो कर दिया, सेटिंग टाइम का अलग कर दिया, ये जो छोटे मेरे पास सब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, इनको कंप्यूटर साइंस के अंदर बोलते हैं मॉड्यूल्स। So modules is basically when you decompose a larger, yeah, my camera is turned off because I'm taking the class from my room. तो वहां पे कभी कभार जो मैं लास्ट टाइम जब ले रहा था तो वहां पे थोड़ा इशू ये हो रहा था कि द कैमरा वाज लैगिंग, आई डोंट नो यहाँ पे कोई सिग्नल्स का इशू है या क्या, सो इस वजह से मैंने कहा कि वो लैग ना आ रहा हो, तो आई डिड नॉट इवन टर्न ऑन द कैमरा टुडे। लेकिन वो इंशाल्लाह कल फिर मैं जहाँ पे वैसे लेता हूँ तो वहां पे लूंगा। आज थोड़ी तबीयत मेरी बड़ी खराब थी, तो आई वाज लाइक मैं बाहर नहीं जा सकता, ज्यादा तो नहीं खराब थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर। लेकिन अब मॉड्यूल्स का ये सीन है कि ये जो हमारे पास छोटे सब प्रॉब्लम्स है ना, इसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। अब व्हेन वी हैव मॉड्यूल्स इन डिस्कशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो दिस इज वेयर एक्चुअल प्रोग्रामिंग इज टेकिंग प्लेस। एंड हाउ विल दैट टेक प्लेस? क्योंकि हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो हमारे पास ब्रेक बड़ा प्रॉब्लम है, वी आर गोना ब्रेक दैट इनटू मॉड्यूल्स। एंड मॉड्यूल्स इज बेसिकली, जो मैंने आपको अभी बताया, इट इज काइंड ऑफ स्मॉल सेक्शंस ऑफ कोड। मतलब हमारे पास छोटे छोटे सेक्शन आ गए कि मे बी मैंने अलार्म ऐप सेटिंग का कोड कर दिया, फिर मैंने कोड कर दिया स्नूज का, फिर मैंने किसी और चीज का कर दिया, एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने कोडिंग लिख दी तो हम आइटरेटिव टेस्टिंग करते हैं। अब आइटरेटिव टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि हम आइटरेटिव, द वर्ड आइटरेटिव बेसिकली मींस रिपीट, मतलब हम बार बार टेस्टिंग कर रहे होते हैं। किस तरीके से कर रहे होते हैं? वी काइंड ऑफ टेस्ट समथिंग, वी डू टेस्ट, मतलब हम देख लेते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं कि या इसका आंसर हमारे पास सही आ रहा है या नहीं। पहले इफ आई मेक एन कैलकुलेटर एंड उसके अंदर मैं 2 + 5 डालूं एंड इफ इट इज गिविंग मी द आंसर 8, तो इसका मतलब है देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एन एरर, राइट? सो हम सबसे पहले उसको करेंगे टेस्ट। आफ्टर टेस्ट मुझे पता लग गया कि यार आंसर तो 8 आ गया, इसका मतलब है कोई एरर है, तो आई एम गोइंग टू फिक्स दैट एरर, आई विल लुक फॉर दैट एरर। फिर उसके बाद वंस आई फिक्स दैट एरर, उसके बाद आई विल अगेन रीटेस्ट इट। अब ये मैं रिपीट में कर रहा हूँ, राइट? आई एम रिपीटिंग द होल थिंग। मैं एक चीज कर रहा हूँ, उसको टेस्ट करो, फिर फिक्स करो, फिर आई एम अगेन रीटेस्टिंग, फिर उसको चेक करूंगा, अगर नहीं हो रहा फिर आई एम गोना फिक्स इट, फिर रिपीट करूंगा, एंड दिस इज गोना कंटिन्यू अंटिल वन until when, until the point जब you retest, बल्कि retest तो लिख दिया, and until, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, बल्कि इसको हटा दो, retest until each module वर्क्स। मतलब हम तब तक ये चीज कर रहे होंगे जब तक हमारा सारा का सारा कोड, एटलीस्ट जो हम कोडिंग कहाँ पे कर रहे होते हैं, वी कोड इन आईडीई। आपको ये पता है ना, चैप्टर नंबर 4 के एंड में हमने पढ़ा था आईडीई। तो ये जो स्टेज हो रही है ये बेसिकली आईडीई के अंदर हो रही है। तो आईडीई के अंदर हम बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं कि जब तक हमारा सारा का सारा, मतलब स्नूज ऑप्शन चल रहा है, अलार्म सेटिंग चल रहा है, सेटिंग टोन चल रहा है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो हमारा स्टेज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, विच मींस कि वी आर गुड टू गो। देन वी कम टू स्टेज नंबर 4, विच इज बेसिकली द इंपॉर्टेंट स्टेज, जो इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, टेस्टिंग इज बेसिकली स्टेज नंबर 4। अब आप लोग बोल रहे हो कि टेस्टिंग तो ऊपर भी हो रही है। दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग इज बेसिकली जब आप उसको थोड़ा सा ना प्रॉपर तरीके से टेस्ट करें। मतलब आप लोगों ने देखा होगा बेटा
इस तरह गेम्स आई होती है प्री रिलीज आपके पास आ जाती है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, तो वो चेक कर रहे होते कि किसी के पास, हाँ एग्जैक्टली राइट, तो आपके पास जो ये वाली चीजें आ रही होती है वो टेस्ट हो रहा होता है आपके प्रोग्राम बिफोर ऑफिशियली फुली लॉन्चिंग इट, जिसके अंदर ये होता है कि इट टेस्ट द होल सिस्टम, टेस्ट द होल सिस्टम with different test data, with different टेस्ट डेटा। अब आप बोल रहे होगे सर टेस्ट डेटा का क्या मतलब है? टेस्ट डेटा का ये मतलब है कि हम उसके अंदर एक दफा ऐसी चीजें डाल देंगे जिसके अंदर आंसर हमारे पास सही आना चाहिए। मतलब इफ आई मेक एन ऐप जो कि कैलकुलेटर हो, तो अगर मैं उसके अंदर ये डाल दूं 2+5 तो द आंसर शुड बी 7, राइट? तो ये सही आ रहा है। फिर आई शुड ऐड समथिंग रॉन्ग, मतलब अगर इफ आई एम मेकिंग अ कैलकुलेटर बट आई राइट A+B, what should be the answer? I will get no answer, so there should be an error for that. इस तरीके से मैं different kind of एरर डेटा इसके अंदर डालूंगा, सही वाला डालूंगा, गलत वाला डालूंगा, बाउंड्री वाला डालूंगा, टू सी कि यार जो मेरा सिस्टम है वो हर पॉसिबल वैल्यूज की तरह के साथ सही तरीके से चल सकता है या नहीं। तो टेस्टिंग के अंदर वी आर गोइंग टू टेस्ट द होल सिस्टम विद डिफरेंट टेस्ट डेटा, एंड इसका पर्पस ये है कि वी नीड टू इंश्योर कि एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर एज प्लान। सो हम ये भी लिख देते हैं, इंश्योर्स everything works together as planned। मतलब अब मैं सारा कुछ डाल दूंगा, अलार्म का टाइम भी सेट कर दूंगा, स्नूज ऑप्शन भी कर दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा, सबको एक साथ भी करने की कोशिश करूंगा टू इंश्योर कि यार जो कुछ मैंने डाला है वो जैसे मैंने प्लान किया उसी के मुताबिक सही तरीके से टेस्ट हमारा सही पास हो गया एंड एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली। जब हमारा ये हो जाए ना तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऐप को पब्लिश कर देंगे, लाइक आवर प्रोग्राम इज कंप्लीटेड हियर वी हैव आवर प्रोग्राम। सही है, प्रोग्राम विच मीन्स कि हमारे पास सब कुछ गुड टू गो सीन के अंदर आ गया। अब जब ये हो गया तो आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली आगे पीछे वो कर सकते हैं, बट देन हमारे पास एक फाइनल स्टेज भी है जो कि ज्यादातर होती नहीं है लेकिन आप लोग को पता होनी चाहिए, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस स्टेज नंबर 5। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग कोई ऐप को करते हैं, डजंट वर्क, वी विल रीस्टार्ट फ्रॉम द एल्गोरिथम? नहीं, we won't restart from the algorithm. It is more of like, ये देखो, good question by the way, होता है इस तरह है कि जब मैं एल्गोरिथम वाले पॉइंट्स में आता हूँ ना, एनालिसिस, तो मैं अपने पास एक कोड लिख दिया कि मैंने ये चीज बनानी है, फिर उसके लिए मैं रोड मैप भी बना लेता हूँ। अब ये जो हमारे टेस्टिंग एरर्स होते हैं ना, इट इज यूजुअली डन क्योंकि हमसे कोई, कभी कभार आपने देखे भी होंगे मीम्स कि किसी बंदे ने कोडिंग करा, उसने सेमीकोलन मिस कर दिया, सो ड्यू टू मिसिंग अ सेमीकोलन उसके कोड के अंदर उसको पता ही नहीं लग रहा कि यार मैंने कहाँ पे गलती की है। तो वो हम जब कोडिंग करें, हम आईडीई के अंदर ही चेक करें होंगे कि वेयर इज द पॉसिबिलिटी है हमने कोई गलती की, एंड वी विल ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम विद इन द कोड। कभी कभार होता है बंदा कोड लिख रहा होता है, मतलब प्रिंट कर रहा है, तो प्रिंट के आगे उसने इस तरह हेलो करके इधर कोटेशन मार्क डाल दिया, इधर डाला ही नहीं। तो इस तरीके से गलतियां जो हो सकती हैं, कुछ और भी कैलकुलेशन गलतियां हो सकती है, कोड में लेटर मिस हो गया, तो वो उस चीज को वो फिक्स करेगा। रेयान, यही आपका क्वेश्चन था? No, you have to use semicolons. That is just an example. You have to use semicolons. Like अब जो C++ है ना, उसमें it is kind of like, अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि I want to output something onto the screen, तो I will write this statement C out। अब ये आप लोग को पता नहीं होना चाहिए लेकिन it is something like this, hello। सही है, आपने C प्लस के अंदर this is the syntax। तो if I am writing this code but I kind of mix, I do not write this semicolon, so the program will not get or understand कि यार what is the person trying to do, and उस सूरत में ये नहीं चलेगा, and फिर मेरे पास error आ जाएगा। So I will be checking, फिर अगर error आता है मेरे पास तो फिर मैं ऊपर वाले स्टेज नंबर 3 में कोडिंग स्टेज में जाऊंगा। I will test it, पता लगा कोई error है, then I will try to fix it। मैं देखूंगा ओ सेमीकोलन रह गया, मैंने फिक्स कर दिया। अच्छा, why do error comes? That's another good question। एरर्स इसलिए आते हैं कि भाई आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई चीज लिख रहे होते हो, डेफिनेटली कभी कभार आप इंसान हो, राइट? कोई चीज आपसे भूल सकती है, कोई चीज आप तेजी से लिख रहे हो मिस हो सकती है, कोई चीज शायद आपसे, हाँ मिस हो सकती है, कोई चीज शायद आपने टाइपो कर दी है। आप नाम लिख रहे थे ABC और गलती से C की जगह आपने V डाल दिया, आप तेजी से लिख रहे हैं, कोई चीज रह गई है, या फिर कभी कभार ये हो सकता है जो आपने कोड लिखा है उस कोड की कोई चीज, एग्जैक्टली कंप्यूटर इज डम, शायद आप कोड लिख रहे हो उस कोड के कोई सेंस कंप्यूटर को नहीं मिल रही, या फिर एक और तरीका ये भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि एरर्स आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आ सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कैलकुलेटर के अंदर
नंबर्स ऐड हो सकते हैं, नंबर्स ओनली। लेकिन मैं कैलकुलेटर के अंदर डाल दूं कि a+b करके दो, तो अब a+b तो नहीं चलेगा, इट इज गोना गिव एन एरर, राइट। तो इस तरीके के एरर्स भी हमारे पास आएंगे, इस सबको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो फिर आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी, सही है। अब जब हम मेंटेनेंस की बात करें, विच इज द लास्ट स्टेज, इसका ये मतलब है कि यार जब हम रिलीज कर लेते ना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के ऊपर हमने डाल दिए, अब आफ्टर रिलीज अगर कोई बंदा कंप्लेन करे कि यार देयर इज समथिंग नॉट फाइन या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जब हम उसके अपडेट्स लाते हैं, आप लोग देख रहे होगे इंस्टाग्राम के अपडेट्स आ जाते हैं, तो जब हम बोलते हैं कंप्यूटर इंस्टाग्राम के अपडेट्स आ गए, तो उसका क्या मतलब है, कोई प्रॉब्लम थी, कोई बग थे या कोई न्यू फीचर था जो वो मेंटेनेंस स्टेज के अंदर करके अपलोड कर देते हैं। तो वी से कि मेंटेनेंस के अंदर ये होता है कि आफ्टर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर फुली दे काइंड ऑफ फिक्स बग्स, सही है, दे अपडेट फीचर्स एंड दे आल्सो अडेप्ट टू यूजर नीड्स। मतलब मैं ये बोल दूं कि अभी आप लोग के सामने मैंने अपने वो अपलोड कर दिए, अलार्म ऐप मैंने बना दिए, मैंने प्ले स्टोर पे डाल दिया, अब आप लोग उसको यूज कर रहे हो, आप लोगों ने बोला कि सर एक तो मसला ये हो रहा है कि उसके अंदर एक ये कि जब आप ओपन करते हो तो वो स्लो हो जाता है, तो एक बग वाला इशू है कि यार 1 सेकंड बाद अलार्म बजता है एक्चुअल टाइम पे। सो आई हैव अ बग, व्हेनेवर आई से बग, दिस बग इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस मीन कोडिंग में कोई एरर्स, कोडिंग एरर्स। एंड इसके बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ी हिस्ट्री जाननी है तो यू गाइस कैन ओपन माय इंस्टाग्राम पेज, उसके अंदर मैंने बग के बारे में हिस्ट्री भी बताई थी। द नेम बग्स कम फ्रॉम द फैक्ट कि जो ये लाइक हमने एक पोस्ट इसके ऊपर डाली थी, द नेम बग्स बेसिकली कम फ्रॉम द फैक्ट कि जो हमारे पास रुको आई विल शेयर द लिंक, आप लोग उसको फॉलो कर लो एंड यू गाइस कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय पर्सनल वाले, लेकिन रुको दिस इज बेसिकली किधर गया, कोड कैटलिस्ट, यू गाइस कैन सर्च ऑन इंस्टाग्राम फॉर कोड कैटलिस्ट एंड आपके पास आ जाएगा, लेकिन मैं शेयर भी कर देता हूँ, सही है। ये अब जो द वर्ड बग बेसिकली कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जो हमारे पास पहला कंप्यूटर बना था ना, उसके अंदर जो एरर कॉज हुआ था दैट वाज कॉज क्योंकि एक एक्चुअल बग उसके अंदर था। लेट मी सी अगर यहाँ पे होगा भी, या लेट मी शेयर इट विद यू गाइस, 2 मिनट, इधर गया क्रोम टैब इंस्टाग्राम, या लुक एट दिस। अब ये जो द फर्स्ट एवर कंप्यूटर साइंस बग था ना, वो लिटरल बग था। किस तरह, क्योंकि आपके कंप्यूटर इन जो 1947 के अंदर एक कंप्यूटर था ना, उसके अंदर लिटरली एक बग फंस गया था, जिसको फिर इन्होंने रिमूव किए एंड तब से हमें ये पता लगा कि हम इसको बग का नाम हमने दे दिया। सो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ वो करते हैं कि इससे पता लगता है कि आपके कंप्यूटर के ये बग नाम कहाँ से आता है, सही है। सो बैक टू वेयर वी वर, अब हमने ये तो डिस्कस कर दिया कि यार जो हमने मेंटेनेंस है उसका काम किया, कंप्यूटर में कोई ऐप में कोई मसले हैं, कोई न्यू फीचर मैंने डालना है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, एंड दैट अपडेटिंग या न्यू फीचर कम्स अंडर स्टेज नंबर 5। द पॉइंट अडेप्ट टू यूजर नीड्स का ये मतलब है कि अगर मैं ये बोल दूं आप लोगों में से मुझे कोई ये बोले सर कोई वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी डाल दे कि यार मैं पढ़ा हूँ, मैं बोलूँ अलार्म ऐप टर्न ऑफ द अलार्म और वो बंद हो जाए, तो आई एम काइंड ऑफ इफ आई ऐड समथिंग लाइक दिस, so it is going to adapt to the user needs. Yeah, I'm basically Code Catalyst is the official name of my you can say teaching world. सही है। So yeah, Code Catalyst is my project, you can say. सही है। चलो now we have discussed, okay it's 10, चलो कोई नहीं भाई, हो जाएगा यार। मैं तो कहता हूँ यार घंटा और पढ़ते हैं, पढ़े ना, मुझे लग रहा है आप सब लोग पढ़ना भी चाह रहे हो, 1 घंटा पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़े। Never mind, छोड़ो यार, manipulation. We had a very good discussion on the 5 stages alongside an introduction to what's paper number 2 all about. And बस आप लोग को ये पता होना चाहिए, एक बात बस ध्यान में रखो, डरना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आप लोग को ये चीजें समझ आए ना, ये पता है आप लोग स्कूल के अंदर जब इसको पढ़ोगे ना तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगी, लेकिन देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इस चीज के ऊपर लोग फोकस नहीं करते। आपके चैप्टर नंबर 7 का इनिशियल पार्ट जो है ना, इनिशियल पार्ट दैट इज वेरी थ्योरेटिकल, मतलब जो अभी मैं ये जो चीजें पढ़ रहा हूँ आप लोग बोलोगे सर प्रोग्रामिंग का पेपर ये तो थ्योरी है। सो याद रखो कि चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट 30%, फर्स्ट 30% दैट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग वाली थ्योरी, उसको मैं प्रोग्रामिंग वाली थ्योरी बोलता हूँ, बट दैट इज थियोरेटिकल प्रोग्रामिंग थ्योरी बोल देते हैं प्रोग्रामिंग थ्योरी। मतलब आप इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग वी सी कि क्या क्या हमारे पास थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उसके आ सकते हैं। यू ऑल नीड टू बी अवेयर कि ये आपको पता हो।
लोगों ने क्या बोला था कि लोग करते, ओ अहमद आप टेंशन क्यों ले रहे हो, एट द एंड इंशाल्लाह यू विल बी सेइंग कि भाई आई एम गुड विद पेपर नंबर 2 एंड आल्सो विद पेपर नंबर 1. एंड रियान, इफ द case is opposite for you, so you should start working on topicals and see कि कहाँ पे paper number 1 में you are lacking. But that's great to know कि your paper number 1 is getting better. Inshallah it will over time, don't worry. अब जो आपका first 30% है ना, वो प्रोग्रामिंग थ्योरी है. मसला ये है कि प्रोग्रामिंग थ्योरी के अंदर लोग इसको मिस कर देते हैं. दे ओनली बिलीव कि आपके पेपर नंबर 2 के अंदर सूडो कोड है. दे स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द सूडो कोड एल्गोरिथम्स, दे डायरेक्टली टीच कि यार क्या चीजें करने वगैरह वगैरह वगैरह, एंड दे कंटिन्यू दैट स्टफ. जिसकी वजह से बड़ा मसला ये हो जाता है कि लोग ये छोड़ देते हैं थ्योरी, एंड इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वजह से ना इनके साथ प्रैंक हो जाएगा. सो इस वजह से याद रखने की जो अभी हम इनिशियल पार्ट करें, इस थ्योरी वाले पार्ट को छोड़ना नहीं है, एंड उसी के साथ आप लोग सूडो कोड हम करेंगे इंशाल्लाह, एंड फिर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. सही है. So it's 10 p.m. I hope you all understood the whole topic very well. We won't be moving ahead. जहाँ तक कल की क्लास की बात है, I was planning on having a class tomorrow, लेकिन हमारे एक शहजादे ने ये बोल दिया कि tomorrow is some sort of match. तो क्योंकि कल मैच है, हाँ, इस वजह से because the match will be from 7 to 10, तो I have given you all the permission to enjoy, and फिर inshallah we will have क्या कहते हैं, a class on Monday inshallah. So चलो guys, everybody take care, Allah Hafiz and enjoy. Bye bye. Allah.